स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स अपना सिलेबस ले लें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज आपकी शुरू हो चुकी हैं और सभी स्टूडेंट अपना पासवर्ड और एसआर नंबर भी स्कूल से प्राप्त कर लें। जैसा कि गवर्नमेंट का भी आदेश है ऑनलाइन क्लासेज का, इसी के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन क्लासेज आपकी शुरू हो चुकी हैं और आप जो हैं सभी अपना कार्य नियमित रूप से करें, सिलेबस ले लें और आपके जो टेस्ट हैं यूनिट टेस्ट, वो सभी टेस्ट ऑब्जेक्टिव होंगे और ऑनलाइन होंगे। आप अपना कार्य जो कार्य यहाँ से दिया जा रहा है, आप उसको जो है समय समय पर स्कूल में आकर के चेक करा सकते हैं। चेक कराएं, अपना कार्य बिल्कुल कंप्लीट रखें। आज 12th क्लास में इंग्लिश में मैं आपको फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट। ए गर्ल विद ए बास्केट इज एन इंपॉर्टेंट लेसन रिटन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस is a judge in the Supreme Court of America. He came to India on a visit in 1952. He wants to see that what is in India, because all invaders came to India. The writer came to Delhi and he went to Bareilly from Delhi by train. He saw on the way the Ganga was flowing, overflow and flood in the Ganga. The writer saw 100 acres crops were sinking in the water of the Ganga. After that, the writer went to Ranikhet from Bareilly by bus, because Ranikhet was an British army station. It is situated on hill. When my writer traveling in the train, he landed every station and talked to people. He was trying to get the pulse of the nation and current affairs. The writer saw that the stations were packed with priests, beggars, hawkers and other things. He saw that almost persons were barefoot and they wore white and loose garments. The writer landed a station that the refugee children were selling basket and other hand-woven articles. They were crying to sell their articles. Writer bought some articles and he spent ₹1 and few annas. Anna is equal to 6.25 paise. So ₹1 is equal 16 annas. Writer saw that a 9-year-old beautiful girl was selling basket. She had a handle basket. She requested writer to buy the basket. But the writer why not need to buy basket, because he had no space. Seeing the condition of the old 9 years old girl, the writer
reached his hand in the pocket of his coat and some change gave to the child, little girl. The little girl felt very insult and she returned all the chains to the little girl. After that, the writer bought a basket from the little girl. The writer ran away from the hut happily. The writer told this story the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. The writer said that I saw in India, in office, village and other places, Indian people had a passion for independence, because the writer said that a little girl of 9 years gave me a glimpse of warm south of India. I am going to tell you, I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot rise opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. The writer, लेखक कहता है कि मैं दिल्ली से हिमालय या उत्तर की ओर के लिए आया है, मैं उत्तर की ओर चला. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, कि मैं रेलगाड़ी से बरेली को जा रहा था. देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद में बरेली से रानीखेत कार से गया. रानीखेत आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 foot rise Ranikhet opposite a 120 mile stretch for snow-capped Himalaya. रानीखेत 6,000 फुट की ऊंचाई पर 120 मील तक फैले हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर स्थित है. द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी चलने वाली थी. एंड इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशंस, और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, कि मैं कंपार्टमेंट कहते हैं डिब्बा, स्वंग कहते हैं झूलना. मैं अपने डिब्बे के दरवाजे पर झूलता था. एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था. The platform were packed with people, Sikh, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. प्लेटफॉर्म पैक मीन्स भरे हुए थे विद पीपल, लोगों से. इसमें कौन कौन थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, कुली, पुजारी, भिखारी और सामान बेचने वाले. ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट, और अधिकांशतः उनमें सभी नंगे पैरों थे और वे सफेद रंग के ढीले कपड़े पहने हुए थे, यानी कि कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. मैं 2 या 3 लोगों से पूछा करता था कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इंग्लिश बोलता था. We should talk world affairs, मैं विश्व के घटनाक्रम पर बात करता था. एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और दैनिक समाचार पत्रों में निकले हुए जो है समाचारों के बड़े विषयों पर बात करता था. इन दिस वे, इस प्रकार आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मैं राष्ट्र की गतिविधि को जानने की कोशिश कर रहा था.
चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। चेकिंग, चेक मीन्स कहते हैं, चेक रोकने को भी कहते हैं, और चेक मीन्स क्या होता है, निरीक्षण करना। मैं उन अधिकारियों के कार्य और सूचनाओं के अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध विचारों का निरीक्षण कर रहा था। द रूट बाय लेक हीरो, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया। रूट कहते हैं रास्ता। कभी कभी आपने देखा होगा इसमें ये आते हैं होमोफोन्स, किसी में होता है ROOT रूट, और एक जो होता है ROUTE। इस रूट के मीन्स क्या होता है, जड़, और इसके मीन्स क्या होता है, रास्ता। इसका जब हम एग्जाम में आता है तो इसका प्रयोग करने के लिए आता है। इसका प्रयोग करेंगे, रूट प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स। जड़ जो है वो पौधों को क्या प्रदान करते हैं, पानी। यह है द रूट पासिंग इंडियन एग्रीकल्चर एरियाज। ये इसमें होता है, इसको होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है। रास्ता भारत का जो सबसे कृषि प्रधान क्षेत्र है वहां से होकर गुजरता है। दिस बाय द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट अबव सी लेवल बाय ट्रॉपिकल। और यह समुद्र तट से लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर अपर ऊपरी गंगा नदी का मैदान और जो उष्ण कटिबंध है। द गंगा बाय ब्राउन सिल्ट कहते हैं, भूरा रेत जो होता है, रेत नहीं होता जिसको हम रिसाई वगैरह यूज करते हैं, गंगा द्वारा लाया हुआ भूरा रेत स्वर्ण बीट फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ के पानी के साथ पानी में डूबा हुआ था, इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटेड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जो धान की सैकड़ों 100 यानी कि हजारों एकड़ फसल को डूबे हुए था। टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर में जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ द टाइगर। घास, आदमी के सिर से ऊंची घास, और क्लब कहते हैं झुंड, और ओकेशन कहते हैं मौसमी पेड़ों के झुंड। द होम ऑफ द टाइगर्स, चीतों के घर, एलिफेंट्स हाथियों के घर, पाइथन्स अजगर के घर, एंड कोबराज कहते हैं नाग सांपों के घर। एवरीवेयर, सब जगह, एज देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, और जमीन क्षैतिज की ओर कहती चपटी थी। वट डोटेड हेयर एंड देयर, परंतु यहां वहां, बाय द सैक्रेड बनियान ट्री ऑफ, बाय रोज ऑफ पैकर ट्री, की पवित्र उस बरगद, बनियान कहते हैं बरगद, पैकर कहते हैं पीपल और बरगद के पेड़ों की पंक्तियां, एंड शेप्ड लाइक आर्म्स कहते हैं ताड़ के पेड़ को, ताड़ का पेड़, एंड हैवी थिक ट्विस्टेड ट्री, और उसके तने मुड़े हुए थे।